Hello students. So last class we discussed about Giuseppe Mazzini. Now today as I stopped yesterday, uh, that now we will be talking about the age of revolution. Of course, the conservative regime has taken up, and there were many secret societies that were established, and these secret societies were working on their own. They wanted to bring lot of changes in the society, whatever liberal attitude that Napoleon had imposed, and Napoleon had tried to bring lot of um, new culture in Europe. The conservative people tried to go away from it, उससे अलग हटने की उन्होंने कोशिश की, the conservatives. And that is what is mentioned here, children. When we start, they try to consolidate their power. वो अपने आप को बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे थे that they will be able to control everything. And liberalism and nationalism came to be increasing. अभी क्या हुआ कि liberalism happened, nationalism happened, and lot of revolution started. ये रेवोल्यूशन कहाँ पे शुरू शुरू हुआ था, चिल्ड्रन? इट हैड स्टार्टेड इन मेनी प्लेसेस ऑफ यूरोप. यूरोप में नाउ पीपल वेयर इन अ मूड टू ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस, and as a result the first ever revolution that had started were in Italy and Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, also Ireland and Poland. So what happened that there was lot of liberal nationalists who were carrying on these movements, belonging to the educated middle class. We have already discussed, children, that middle class people were those people who were the educated middle class. They were the educated categories who were trying to bring changes, trying to bring lot of revolutions. And when what happens that when the educated class gets involved in any movement, then changes are definitely to occur. पक्की तरीके से चेंज होगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वॉट एवर वर्क दे डू, द एजुकेटेड क्लास, वेन एवर दे वर्क इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एंड दे मेक इट श्योर दैट जो बदलाव आ रहा है सोसाइटी में, however whatever way the changes that are happening, it should be permanent. लोगों को समझ में आना चाहिए that it is going to be very good and beneficial for everyone. तो प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स, मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास, मीन्स ऑल द एलीट ग्रुप, पढ़े लिखे वाले. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, पहला जो रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ, I mean after conservative regime, conservatives took over in 1815. We have already about Treaty of Vienna, और वहाँ पे ड्यूक मेटर्निक के लीडरशिप में द किंग्स established their rule, and now they were trying to impose their own conditions. But now फर्स्ट एवर रेवोल्यूशन स्टार्टेड. यू नो, रेवोल्यूशन का एपी सेंटर हमेशा कहाँ होता था? फ्रांस में. पहला तो 1789 में इन्होंने शुरू कर दिया था. दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड दे वर इंस्पायरिंग ऑल द प्लेसेस एंड ऑल द कंट्रीज इन यूरोप. और काफ़ी इंस्पिरेशन के बाद नाउ द चेंजेस, फाइनल चेंजेस दैट वर हैपनिंग, इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग. बर्बन किंग्स जो थे, who had been already come to who had already come to power during the conservative regime. Now what happened, they were now overthrown by liberal revolutionaries. Revolutionaries जो थे, they were not ready to accept the new kings. They were not at all comfortable working under these kings. And they under the leadership Louis Philippe, constitutional monarchy, Louis Philippe was at its head. एंड यहाँ पे क्या हुआ, बर्बन डायनास्टी जो रूलर्स थे उनको हटा के लुई फिलिप was heading फ्रांस. तो इसमें क्या हुआ ना, मेटर्निक, यू नो, ड्यूक मेटर्निक, द ऑस्ट्रियन चांसलर, ही गेव अ रिमार्क, when France sneezes,
द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। चिल्ड्रन, अभी स्नीज का नाम सुन के ना, मने इफ समबडी इज स्नीजिंग, कोई खांस रहा है या कोई छींक रहा है ना, तो इट इज सो स्कैरी। अभी मतलब जस्ट आफ्टर जस्ट रीडिंग दिस स्नीजिंग थिंग ना, द कोरोना थिंग केम इन माई माइंड, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू। तो क्या हुआ, मोटेनिक ने कहा कि फ्रांस को अगर सर्दी होती है तो पूरे यूरोप में लोगों को सर्दी, द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। नाउ दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज मेटाफर। you have in English you might have read about metaphor and personification। अभी फ्रांस को एक ह्यूमन बीइंग के रूप में हमने देखा कि फ्रांस ने स्नीज किया और सारे यूरोप को ठंड लग गई। तो अभी प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है ना, बट ही वांटेड टू स्प्रेड दिस मैसेज दैट वॉट एवर हैपन्स इन फ्रांस, इट हैज़ इट्स रिएक्शन, इट हैज़ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉट वर्ल्ड एक्चुअली, ही वांटेड टू से ऑल ओवर यूरोप। ओके, अभी जुलाई में दिस रेवोल्यूशन हैड हैपेंड एंड देर वॉज अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। आफ्टर दैट बेल्जियम was away from I mean Belgium was divided and Belgium went away from Brussels, means small kingdoms that were there, जो kingdoms थे वो धीरे धीरे टूटने लग गए। लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। People were not at all ready to accept the power of any ruler। Okay, तो ग्रेजुअली एंड स्लोली व्हाट हैपन, प्लीज रिमेंबर चिल्ड्रन, बोर्ड के लिए इट इज़ अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दैट व्हाट वेर द रिजल्ट्स ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन। इट sparked an uprising in Brussels and Belgium was away from United Kingdom of Netherlands। नाउ नीदरलैंड कहाँ है, बेल्जियम कहाँ है? यस चिल्ड्रन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव टू गो थ्रू द मैप दैट इज गिवन देयर ऑन पेज नंबर 3। इसके बाद क्या हुआ, नाउ मोर नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वॉज कमिंग अप, पीपल वे आर गेटिंग इंस्पायर्ड एंड नाउ everywhere people wanted changes। So what happened, especially among the educated elite, there was one big incident that was called as the Greek War of Independence। Children, abhi recently in one of the sessions that I had with the students, one of the student was asking what was Greek War of Independence। Children, जो टॉपिक मैंने किया नहीं है उस टॉपिक के बारे में हाउ डू आई एक्सप्लेन, दैट्स ओके कि आई एम अ हिस्ट्री टीचर, तो आप कहीं से भी पूछो, बट व्हाट हैपन्स इज कि सीक्वेंस वाइज वी नीड टू अंडरस्टैंड, धीरे धीरे एक एक करके अगर समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। आप क्या होता है ना कि अभी मैं 1815 के बारे में ही पढ़ा रही हूँ एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड अबाउट 1848। अरे पहले यू अंडरस्टैंड द कंडीशंस एंड द थिंग्स दैट हैड हैपेंड इन 1815 आई मीन, और उसको जब तक नहीं समझोगे तब तक 1830 और 1848 कैसे समझ पाओगे। ओके, नाउ फॉर 3 marks इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अभी क्या है कि ग्रीस वॉज पार्ट ऑफ ओटोमैन एम्पायर। आप मैप में देख लेना व्हाट वेयर इज ओटोमैन एम्पायर। 15th सेंचुरी से ग्रीस के ऊपर ओटोमैन एम्पायर का कब्जा था। ग्रीस बीइंग अ क्रिश्चियन कंट्री, बीइंग अ यूरोपियन कंट्री, लेकिन ओटोमैन एम्पायर बीइंग अ एशियन I mean Ottoman Empire was extended in many parts in Asia, तो it was capturing, it had captured Greece और ग्रीस के ऊपर they were ruling। Now what happened, जैसे ये revolutionary nationalism came up ना यूरोप में, तो there was a struggle for independence। ग्रीक में भी they also said कि हमको भी अलग होना है, we also want independence। So ग्रीस में this movement had taken a big step, बहुत बड़े तरीके से ये मूवमेंट जो है वो होने लग गया एंड एज अ रिजल्ट देयर वेयर लॉट ऑफ चेंजेस इन ग्रीस। इनफैक्ट ग्रीस के जो लोग बाहर रह रहे थे ना, लिविंग इन एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स छुप छुप के दूसरे कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं उसको कहते हैं लिविंग इन एग्जाइल। वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी उनको एंशियंट ग्रीक कल्चर, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट सम ऑफ द एंशियंट कल्चर्स, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन जहाँ से शुरू हुआ
उसमें हम ग्रीस का भी नाम लेते हैं. वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में ग्रीस वॉज ऑल्सो देयर. गॉट इट चिल्ड्रन? सो देखो यहाँ दिया हुआ है चिल्ड्रन, इट्स क्लियरली मेंशन्ड हियर. प्लीज रिमेंबर, poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization. कि जो civilization शुरू हुआ मतलब thousands of back, मतलब 10,000 साल 15 पहले जब civilization शुरू हुआ उस समय ग्रीस was there. तो ग्रीस से जब सारी कल्चर शुरू हुआ तो पीपल हैड लॉट ऑफ सिंपैथी कि ग्रीस के ऊपर ओटोमैन एम्पायर ने कब्जा कर लिया है. सो ग्रीस शुड बी इंडिपेंडेंट and lot of people came together. Public opinion, they supported struggle against Muslim empire. An English poet, यहाँ पे आप जब भी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करोगे, इट इज़ नेसेसरी दैट यू मेंशन अबाउट लॉर्ड बायरन. ही ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, पैसे कलेक्ट किए, क्योंकि देखो कोई भी रेवोल्यूशन आप करते हो, कोई भी मूवमेंट आप चलाते हो तो उसमें आपको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है. They later went on and there was a fight in the war and later he went to fight in the war. He died, fever हो गया था, मतलब वॉर में लड़ते लड़ते नहीं मरे थे, बीमार हो गए थे. लॉर्ड बायरन died and Treaty of Constantinople was signed. Now children, let me make one thing very clear. हम ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की बात जब करते हैं तो हमको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताना पड़ेगा. And when we talk about Greek War of Independence, we have to talk about Treaty of Constantinople. One very frequently asked question for 1 mark is Treaty of Constantinople was signed in which year? एक तो 1832 आपको याद रखना है. And what was the major reason of the signing of Treaty of Constantinople? तो Treaty of Constantinople के बाद Greece was declared as an independent nation. Ottoman Empire left Greece and Greece became independent. One of the very important incidents that had happened children in 1824, आपको इस पे बहुत फ्रीली क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये करना ही है. यू हैव टू डू. आपको अगर नोट्स बनाना हो, यू आर फ्री टू मेक नोट्स. प्लीज मेक योर ओन नोट्स. So romantic imagination was there, national feeling was there, and there was development of nationalism. Now खाली टेरिटोरियल एक्सपेंशन, वॉर और इन्हीं सब चीज़ों के वजह से नेशनलिस्टिक फीलिंग नहीं आई. सम पीपल प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंक्रीजिंग द नेशनलिस्टिक फीलिंग. इसमें आपको मेंशन करना है कल्चर. Poetry was there, stories, music. People were getting help. I mean, people were inspired, and nationalistic feelings were raised because of certain incidents that were continuously happening. And this kind of a feeling that had happened was called as romanticism. Please prepare this question for 5 marks. ओके चिल्ड्रन, देखो मैंने बता दिया what was the actually what was that it what was the message of romanticism. what do you mean romanticism के बारे में आपको क्लियरली बताना है. you have to talk about it. got it? अभी आर्टिस्ट वेर देयर, पोइट्स वेर देयर. कौन आर्टिस्ट थे, कौन से पोइट थे? दे क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस. ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है साइंस होना चाहिए, रीजनिंग भी होना चाहिए, लेकिन पुराने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को नहीं बदलना है. वो चीज़ें भी हमको साथ में लेते हुए चलना है. अपनी चीज़ों को बदल देना इज़ नॉट वेरी गुड. जस्ट सी. ओके नाउ चिल्ड्रन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पिक्टोग्राफिक क्वेश्चंस कैन ईजली कम. तो ये अगर पिक्चर आ गया तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द पेंटर. फ्रेंच पेंटर Delacroix was one of the most important French now romantic painter. अभी इन्होंने ये बड़ी सी पेंटिंग बनाई थी 4.19 मीटर
into 3.54 मीटर, जिसमें 20,000 ग्रीक people, turkey na, turks were the people who were there during in the Ottoman Empire. Okay, and they killed the many Greeks. बहुत सारे ग्रीक्स जो है वो मारे गए थे. तो डेला क्रॉइक्स ने क्या किया ना, इस तरह की एक पेंटिंग बनाई. ही मेड सच अ पेंटिंग एंड ही अपील टू द इमोशंस ऑफ द स्पेक्टेटर्स एंड क्रिएट सिंपैथी फॉर ग्रीक्स. ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाना है, ऐसी ऐसी पोएम्स लिखना है जिसको देख के लोग बहुत इंस्पायर हो जाएं, लोगों को आगे कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति मिले. पेंटर्स का, पोइट्स का काम काम ये होता है. अब यहाँ पे चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू जस्ट मेंशन फॉर अ चेंज. क्या होता है ना, बहुत मोनोटोनस हो जाता है दैट वी आर जस्ट डूइंग द चैप्टर, गोइंग थ्रू इट कंटिन्यूसली. तो हमारे इंडिया में भी कुछ पोएम्स जो है बेटा वो बहुत फेमस हैं. यू हैव ऑल हर्ड अबाउट दिस पोएम, यू ऑल हैव रेड अबाउट दिस पोएम. तो लेकिन जब भी इन पोएम्स की लाइन को आप सुनेंगे, हिंदी में आपने पढ़ा है ऑफ कोर्स, 7th या 6th में ही पढ़ा होगा. क्या था, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो. आई नो सबके मुंह से एक शब्द निकल रहा होगा, झांसी वाली रानी थी. ओके, some poems what happened ना चिल्ड्रन, पहले मेरे को याद नहीं होता था. सो माई हिंदी टीचर अच्छे से मेरे को पढ़ी थी एंड शी टोल्ड कि याद करो, ये कभी भी लाइफ में भूलना मत. तो आर हिंदी टीचर यूज टू से कि हमको बहन जी बुलाओ, कॉल मी बहन जी. सो वी कॉल्ड हर बहन जी एंड देन शी इंस्पायर्ड मी सो मच दैट टिल डेट आई रिमेंबर द होल पोएम. चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदोले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. गॉट इट? जस्ट टू इंस्पायर यू चिल्ड्रन. तो क्या होता है, नाउ वी आर बैक टू द चैप्टर सेंस ऑफ शेयर कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चरल पास्ट. हम एक कंट्री के बारे में सोचते हैं, हम एक नेशन के बारे में सोचते हैं, एंड वी हैव टू बी वेरी श्योर एंड वेरी मच नोन टू दिस कि हमको कंट्री के लिए, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है. वी शुड नो अबाउट आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेशन. ओके, so you have to remember the name of some of these people, these poets, these painters. Like one name is given here, Johann Gottfried Herder. He claimed, उसने क्या कहा, that true German culture जो है इसको हमको कॉमन पीपल को बताना है. और वो कैसे बताएंगे? थ्रू फोक सॉन्ग्स, पोएट्री, डांसेस. मीन्स Johann Gottfried. You have to prepare this question for 3 marks. 3 marks के लिए इसको प्रिपेयर कर लेना. Johann Gottfried. Children, I am talking about all these things from the board point of view. I am not preparing you for your unit test or for your half yearly examination. All my efforts and all my explanations are meant for boards. वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस के ऊपर भी बहुत सारा स्ट्रेस था. कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज देयर, नेशनल स्पिरिट. अभी स्पेशली पोलैंड में क्या हुआ, दैट ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया सारे मिल के पोलैंड जो है, इट वॉज नॉट अ लार्जर लॉन्गर, इट वॉज एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी. मतलब पोलैंड वॉज एग्जिस्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी. तो नेशनल फीलिंग वेयर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज. वहाँ के लोग जो हैं किताबें पढ़ते थे, लेकिन लैंग्वेज जो वहाँ के जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पिरेशन मिली. एंड कौन था ये म्यूजिशियन? प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ दिस म्यूजिशियन, कैरल कर्पुन्स्की. गॉट इट? एक तो जोहान गॉटफ्रीड के बारे में आपको याद रखना है. दूसरा, द अनदर नेम दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कैरल कर्पुन्स्की. क्या करते थे वो? ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ओपराज एंड म्यूजिक
turning folklore dances like the Polonaise, mazurka into nationalistic symbols. So, children, you have to remember about Karol Kurupunski. Now, language also played a very important role. भाषा का बहुत फर्क पड़ता है बेटा. What happens is when you speak something, whatever language you are speaking, that has lot of impact on the minds of the people. आप इंग्लिश में बहुत सारी बातें कर लो, लेकिन जब लोकल लैंग्वेज में पीपल स्पीक, दैट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड. ओके. अभी रशियन लैंग्वेज, रशिया में टिल डेट, बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, लेकिन आज तक आप रशियन पीपल आर वेरी पर्टिकुलर दैट दे गो एनीवेयर दे स्पीक ओनली देयर लैंग्वेज. तो दैट टेक्स योर कल्चर, दैट लैंग्वेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कल्चर ना. तो वो आपके कल्चर को बहुत ऊपर तक लेके जाता है. समझ में आता है लोगों को कि वॉट एवर लैंग्वेज इज स्पोकन, उसको बोलने से लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत सम्मानित महसूस करते हैं. ओके. सो देखो यहाँ पे वन लाइन आई वुड लाइक टू अंडरलाइन, लैंग्वेज वॉज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस. सो पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स. पोलैंड में जो भाषा बोली जाती है दैट इज़ पॉलिश. ओके. प्रीस्ट्स एंड बिशप्स वेयर देयर, दे वर पुट इन जेल और सेंट टू सर्बिया बाय रशियन अथॉरिटीज़, क्योंकि रशिया ने क्या दिया कि विच एवर टेरिटरीज कम अंडर आवर पावर, जो भी हमारे अंडर में है वहाँ पे आपको एक ही लैंग्वेज बोलनी है. एंड द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमेन. कि रशियंस ने कहा कि हमारे रशिया की लैंग्वेज अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप हमारे खिलाफ जा रहे हैं. अब क्या हुआ, 1830 में इकोनॉमिक हार्डशिप शुरू हो गई. सब ठीक है, नेशनलिस्टिक फीलिंग इज़ गुड, पीपल सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज़ गुड, कंट्री के लिए आपको कुछ करना है दैट इज़ ओके. लेकिन बेटा व्हाट हैपन्स टिल द टाइम योर स्टमक इज़ फिल्ड, जब तक पेट भरा हुआ नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट डू एनी थिंग अनटिल एंड अनलेस योर स्टमक इज़ फिल्ड. सो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई यूरोप में. एंड फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी का देर वॉज पॉपुलेशन इंक्रीज ऑल ओवर यूरोप. हर जगह पे पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा था. एंड जॉब नहीं थे, देर वॉज अनएम्प्लॉयमेंट. जस्ट population was moving because people wanted more and more jobs. Oh, shit. And population from rural areas migrated to the cities to live in slums. स्लम एरिया में रहने के लिए जो है वहाँ पे जा रहे थे सिटीज़ में. पीपल वेर गोइंग बट इट वॉज हार्डली मेकिंग एनी डिफरेंस. टाउन्स में द प्रोड्यूसर्स हु वेर देयर दे वर फेसिंग टफ कॉम्पिटिशन्स. एंड दिस लेड टू, अभी क्या हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, aristocracy was there but they enjoyed only power. Peasants were continuously struggling under the burden of feudal dues, obligations. लगातार कर्जे लेते रहते थे ना. so the people could not get out of the debt. they were always in debt, हमेशा कर्जे में डूबे रहते थे. so they found out a good way of coming out of this debt. and food prices increased, bad harvest was there, widespread pauperism was there. Now children, you will not understand pauperism. गरीबी, हद से ज़्यादा गरीब लोग थे. एंड बहुत ही ज़्यादा गरीबी जो थी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी. तो 1848 वाज वन सच ईयर. ऐसा ही एक साल था. खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं था एंड अनएम्प्लॉयमेंट था. तो पेरिस में जितने भी लोग थे दे केम आउट ऑन रोड्स. उन्होंने कहा अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है, वी वांट food and we want that proper care should be taken. गरीब हैं लेकिन भूखे थोड़ी मरेंगे.
So they came on roads. As a result, and barricades were erected. Louis Philippe was forced to flee. लुई फिलिप जो कि जिन्होंने की सारी कमान अपने हाथ में ली थी, दे हैव टेकन ऑल द पावर इन देयर हैंड्स. दे दे जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ थिंग्स विल चेंज. उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से लोग बदलाव लाएं कि लोग जो है वो खुश हों. तो वो भाग गए वहाँ से. और नेशनल असेंबली जो है, इट प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक. 1848 का चिल्ड्रन, यहाँ पे वन पेंटिंग इज देयर. These are all original paintings, children, which have been taken from archives. I hope you all know what is archive. Yes, all the historical documents are stored in archives. So from there, we have taken these informations. National Assembly said that they have to be a republic. They granted suffrage to all the adult males. अभी भी देखो children, struggle is still going on, and girls, I mean women, girls, I'm just saying like that, women did not get the right to vote. Whenever struggle was there, women were always ignored. National workshops were established to provide employment. लोगों को काम चाहिए था ना. People knew how, what to do, how to do, but they did not know कि किस तरह से काम मिलेगा. काम की बहुत कमी हो गई थी, and that is where the people were facing problems. तो एक इंसिडेंट दिया हुआ है ना. व्हाट हैपेंस इज कि ये हंगर एंड हार्डशिप जो था, लोगों की भूख जो थी, उसके वजह से लॉट ऑफ स्ट्रगल वाज हैपनिंग. क्या है ये? दिस इज एन इंसिडेंट इन साइलेसिया 1845 में. बड़ा सा एक रिवोल्ट हुआ. अगेंस्ट होम? अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स. कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो पैसे लेके आप, मतलब कि दे एम्प्लॉय द वर्कर्स and give them, pay them regularly at the end of the day. And they supplied them the raw material, जो कपड़े बनाते थे, gave them orders for finished textiles, and reduced their payments. काम तो पूरा लेते थे, but good money was not given. So the journalist Wilhelm Wolff described the events in Silesian village as follows. वहाँ क्या हुआ, मतलब प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ विल्हेम वुल्फ. विल्हेम वुल्फ ने ये अपने लैंग्वेज में इसको लिखा है. जो रियल इंसिडेंट है उसको उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि 18,000 इनहैबिटेंट्स थे, कॉटन वीविंग हो रही थी, वर्कर्स का कंडीशन बहुत बुरा था. जैसे इट इज़ मैंशनड हियर, द मिजरी ऑफ वर्कर्स इज एक्सट्रीम. काम नहीं था उनके पास, खाने के लिए नहीं था. So they wanted to reduce, and contractors continuously were reducing the prices of the goods. सामान खरीद के ले जाते थे, लेकिन जितना पैसा देना चाहिए उतने पैसे नहीं देते थे. तो 4th June 2 PM, चिल्ड्रन यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट. ये जितने भी बुनकर थे, मतलब जो कपड़ा बनाने का काम करते थे, दे केम आउट एंड मूव टू द मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत बड़े बड़े घरों में रहते थे. You understand mansion na? Yeah, of course you might be knowing it. Big houses, I mean really big houses are called as mansion. पूरा का पूरा उसमें टेरिटरी होता है. पूरा आपको, मतलब कोई भी चीज़ के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर इन एंड अराउंड मैंशन. तो फर्नीचर, पोर्टलेन, दे स्मैश्ड. उनके घर में घुस के खूब तोड़ फोड़ मचाई. Simple language I am explaining, children. And contractor fled with his family to a neighboring village. पास के गांव में उसको भाग के जाना पड़ा. एंड पास के गांव वालों ने कहा भैया हम तो आपको शरण नहीं देंगे ना. दे सेड कि अगर वो सारे जितने भी मार कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, अगर इफ़ दोज पीपल कम हियर तो देयर वुड बी अ बिग कन्फ्यूजन. सो इन एक्सचेंज दे फॉलोड 11 वीवर्स वेयर शॉट. 11 वीवर्स को पकड़ के इन्होंने क्या किया कि गोलियां चला दी.
हाउ वेयर, देखो यहाँ पे सोर्स सी इज गिवन चिल्ड्रन, दिस सोर्स सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो थ्रू दिस सोर्स सी, सॉरी या, दिस इज इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू सोर्स सी, इसको आप अच्छे से देख लेना, questions could be asked from this source, that's why this source is important. Okay, now in the next class children we will be starting the revolution of the liberals. ठीक है, we will be talking about it, तब तक just go through whatever we have discussed today. Thank you children.